हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी बाबू जी, तो सीधे बात वहीं से शुरू करें जहाँ पे ख़त्म करी गई थी। लिखा हुआ भी है सामने, सेक्शन 43(1) एक्चुअल कॉस्ट। तो सीधे साहब हम लोगों ने एक्चुअल कॉस्ट की जो मेन जो डेफिनेशन जो है वो हम लोगों ने पढ़ ली थी। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एन एसेट मीन्स एक्चुअल कॉस्ट टू द एसएससी एज रिड्यूस्ड बाय द प्रोपोर्शन ऑफ द कॉस्ट देयरऑफ as has been met directly or indirectly by any other person or authority। ठीक है, तो एसेट हमको कितने में पड़ रही है, ये एसेट की एक्चुअल कॉस्ट होती है। अब एक्सप्लेनेशन 3 साहब, बड़ा जबरदस्त एक्सप्लेनेशन है। बोलूं, सुनाऊं आपको? बहुत ध्यान से सुनिएगा एक्सप्लेनेशन नंबर 3 क्या कहता है। एक्सप्लेनेशन नंबर 3, इनकम टैक्स एक्ट। अब मैं वही पढ़ रहा हूं जो इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। फिर से वेयर बिफोर द डेट ऑफ एक्विजिशन बाय द एसएससी द एसेट्स वर एट एनी टाइम यूज्ड बाय एनी अदर पर्सन। एक लाइन का है, एक लाइन का एक्सप्लेनेशन, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, single line। Where before the date of acquisition by the SSC, the assets were at any time used by any other person for the purposes of his business or profession, and the assessing officer is satisfied that the main purpose of the transfer of such assets directly or indirectly to the SSC was the reduction of tax liability by claiming depreciation with reference to an enhanced cost. The actual cost to the SSC shall be such an amount as the assessing officer may, with the previous approval of the joint commissioner, determine having regard to all the circumstances of the case। Full stop। समझ में आया क्या मैंने बोला? वीडियो पॉज करके थोड़ा सा रिवर्स करके सुन लीजिए क्या मैंने बोला। एक बार फिर से बोल दे रहा हूं, आप भी क्या याद रखेंगे। Where before the date of acquisition by the SSC, the assets were at any time used by any other person for the purposes of his business or profession, and the assessing officer is satisfied that the main purpose of the transfer of such assets directly or indirectly to the SSC was the reduction of tax liability by claiming depreciation with reference to an enhanced cost. The actual cost to the SSC shall be such an amount as the assessing officer may, with the previous approval of the joint commissioner, determine having regard to all the circumstances of the case। हमारा एक्ट ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस से भरा पड़ा है जी। हम ज़्यादा लंबी चौड़ी बात कहते नहीं, एक सेंटेंस में ही सारी बात कहना हमें अच्छा लगता है। चलिए आपको लिखवा देते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है ना। Explanation number 3, where before the date of acquisition by the SSC, the assets were at any time used by any other person for the purposes of his business or profession, and the assessing officer is satisfied
that the main purpose of the transfer of such assets directly or indirectly to the assessee that the main purpose of the transfer of such assets directly or indirectly to the assessee was the reduction of tax liability ब्रैकेट के अंदर है by claiming depreciation with reference to an enhanced cost. The actual cost to the assessee shall be such an amount as the assessing officer may, with the previous approval of the Joint Commissioner determine having regard to all the circumstances of the case. जी, अब इसमें थोड़े से पंक्चुएशन भी यूज कर लेते हैं तो थोड़ा सा ये स्टेटमेंट, ये सेंटेंस मीनिंगफुल हो जाएगा, ठीक है ना। वेयर कॉमा बिफोर द डेट ऑफ एक्विजिशन बाय द एसएससी कॉमा द एसेट्स वर एट एनी टाइम used by any other person for the purposes of his business or profession, and the assessing officer is satisfied that the main purpose of the transfer of such assets, comma, directly or indirectly to the assessee, comma, was the reduction of tax liability, फिर स्मॉल ब्रैकेट में by claiming depreciation with reference to an enhanced cost, bracket बंद, comma, the actual cost to the assessee shall be such an amount as the assessing officer may, comma, with the previous approval of the Joint Commissioner, comma, with the previous approval of Joint Commissioner, determine having regard to all the circumstances of the case. बाकी फुल स्टॉप लगा हुआ है। एक बार ध्यान से सब लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट करें अच्छे से।
हाँ जी साहब जी, नोट कर लिया, वेरी गुड। आइए समझते हैं इसको, ये कह क्या रहा है एक्सप्लेनेशन। वैसे आपको अपने आप से समझ में आ रहा होगा। ये साहब एक्सप्लेनेशन कह रहा है वेयर, वहाँ। बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था इंग्लिश में कि वेयर का मतलब होता है कहाँ। कहाँ भाई, कहाँ कहाँ जा रहे हो, वेयर। अभी क्या है मतलब वेयर का? अभी वेयर का मतलब है वहाँ, जहाँ, कहाँ। तो वहाँ जहाँ क्या हुआ, वेयर बिफोर द डेट ऑफ एक्विजिशन बाय द एसएससी, बिफोर द डेट ऑफ एक्विजिशन बाय द एसएससी, एसएससी के एक्वायर करने से पहले, द एसेट्स वर एट एनी टाइम यूज्ड बाय एनी अदर पर्सन, उस एसेट को कोई और पर्सन यूज करता था फॉर द पर्पसेस ऑफ हिज बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है साहब, मतलब हमने एक्वायर करी, हमारे एक्वायर करने के पहले उस एसेट को कोई और यूज कर रहा था, बोले तो सेकेंड हैंड चीज मैंने खरीदी। एंड द असेसिंग ऑफिसर, दिस इज शॉर्ट फॉर्म असेसिंग ऑफिसर, एंड द असेसिंग ऑफिसर इज सेटिस्फाइड। असेसिंग ऑफिसर जी को ये लग गया, समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? दैट द मेन पर्पस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ सच एसेट्स, कि इस एसेट को खरीदने का मेन पर्पस, द मेन पर्पस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ सच एसेट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द एसएससी, एसएससी को डायरेक्टली वो एसेट मिली हो या किसी ने किसी को दी और उससे एसेट एसएससी के पास आई, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द एसएससी वाज द रिडक्शन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। असेसिंग ऑफिसर कह रहा बस 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 मैं समझ गया, मुझे समझ में आ गया कि ये एसेट आपने क्यों एक्वायर करी है। मैंने कहा भाई क्यों एक्वायर करी भाई, क्या आपको समझ में आ गया? कहते वाज द रिडक्शन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, टैक्स बचाने की कोशिश करी गई है यहाँ पे। मैंने सर एसेट खरीद के भला कौन सा टैक्स बचा लेंगे? कहते हाँ हाँ तुम तो बउआ हो, तुमको पता थोड़े नहीं, हमको बेवकूफ़ समझ रखा है। मैंने कहा सर आपको भला हम क्यों बेवकूफ़ समझेंगे? कहते हम बताते हैं आपने टैक्स बचाने की कैसे कोशिश करी है। ब्रैकेट में ये भी लिख दिया गया, बाई क्लेमिंग डेप्रिसिएशन विद रेफरेंस टू एन इनहेंस्ड कॉस्ट। इनहेंस्ड मतलब इन्फ्लेटेड कॉस्ट, बढ़ी हुई कॉस्ट। 10 रुपए की चीज़ को 100 रुपए में खरीद के लेके आए हो, तो अब 100 रुपए के ऊपर तुम डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे। अब जब ज़्यादा डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे तो प्रॉफिट घटेगा, टैक्स बचेगा। तो बाई क्लेमिंग डेप्रिसिएशन विद रेफरेंस टू एन इनहेंस्ड कॉस्ट, द एक्चुअल कॉस्ट, अगर ऐसा समझ में आ गया असेसिंग ऑफिसर को तो क्या होगा? द एक्चुअल कॉस्ट टू द एसएससी, जो मेन सेक्शन ने कहा है ना कि एसएससी को एसेट जितने में पड़ती है वही उसकी एक्चुअल कॉस्ट है, तो ये एक्सप्लेनेशन 3 कह रहा है ऐसे हालात में द एक्चुअल कॉस्ट टू द एसएससी शैल बी सच एन अमाउंट, फिर वो वैल्यू ली जाएगी। कौन सी वैल्यू? एज द असेसिंग ऑफिसर में डिटरमिन, जो भी असेसिंग ऑफिसर डिसाइड करेगा, एज द असेसिंग ऑफिसर में डिटरमिन हैविंग रिगार्ड टू ऑल द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, उस केस के सभी हालातों को मद्देनजर रखते हुए, सभी फैक्ट्स को कंसिडर करते हुए असेसिंग ऑफिसर को जो ठीक समझ में आएगा वो एक्चुअल कॉस्ट लेगा, ना कि वो अमाउंट जो आप बता रहे हो। और इस काम को करने के पहले असेसिंग ऑफिसर को, अगर असेसिंग ऑफिसर ज्वाइंट कमिश्नर के नीचे का रैंक का कोई ऑफिसर है तो उसे ये काम करने से पहले क्या करना होगा? ज्वाइंट कमिश्नर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द ज्वाइंट कमिश्नर। ज्वाइंट कमिश्नर एक अच्छे रैंक का ऑफिसर है सब। जो भी ऑफिसर आपका असेसमेंट कर रहा होता है, चेक कर रहा होता है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर। तो अगर असेसिंग ऑफिसर ज्वाइंट कमिश्नर के नीचे का रैंक का कोई ऑफिसर है तो वो ये काम तब तक नहीं कर सकता है जब तक कि ज्वाइंट कमिश्नर से अप्रूवल ना ले। तो असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा? इस फाइल को पुटअप करेगा जाके ज्वाइंट कमिश्नर के सामने और उनसे कहेगा सर एक ऐसा ऐसा केस सामने आया है जिसमें देखिए एसेट को हमने पता करवाया, उसकी मार्केट वैल्यू इतनी है जबकि एसएससी ने इतने में इस एसेट को एक्वायर किया है। तो सर इस केस में इन्होंने इन्हेंस्ड कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन क्लेम करके टैक्स बचाने की कोशिश करी है, तो क्या हम इस केस में एक्चुअल कॉस्ट जो हमने वैल्यू असेस करी है वो ले लें? ज्वाइंट कमिश्नर देखेगा और कहेगा कि हाँ यस यू मे गो हेड, अप्रूवल दे देगा, तब जाके असेसिंग ऑफिसर ऐसा कर पाएगा। अभी समझ में आ रहा है आपको सबको? एक्सप्लेनेशन नंबर 3 ये है सब कहानी।
तो वो हमारे जो दो नमूने जो कह रहे थे ना मिस्टर ए और डबल ए कि एक 10 लाख की एसेट खरीदो, उसको डेप्रिशिएट करते करते जब 50,000 वैल्यू बचेगी 9.5 लाख तुम डेप्रिशिएशन क्लेम कर लोगे, तो फिर हमको बेच देना, फिर हम उस पर डेप्रिशिएशन क्लेम करना शुरू कर देंगे, हम उसको 50,000 ले आएंगे, फिर हम तुमको बेच देंगे, दोनों लोग मिल के चूना लगाएंगे डिपार्टमेंट के। तो आप समझ सकते हैं ऐसी किसी प्लानिंग को नाकाम करने के लिए ही ये एक्सप्लेनेशन 3 बनाए गए हैं। समझ में आ रहा है ना सबको? आइए जरा इसका और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको दिखाऊं। अरे सीए साहब क्या कहूं मैं अब आपको। एक साहब हैं, इधर देखो जरा, ये मिस्टर ए। मिस्टर ए का अपना एक बिजनेस, ठीक है ना, जरा ध्यान से फैक्ट्स को सुनिएगा। मिस्टर ए का अपना एक बिजनेस है, इस बिजनेस में इनका प्रॉफिट बिफोर डेप्रिशिएशन आ रहा था करीब करीब से 10 लाख रुपए। ठीक है, ये प्रॉफिट बिफोर डेप्रिशिएशन है, सारे खर्चे वगैरह क्लेम करने के बाद 10 लाख रुपए इनका प्रॉफिट है और अभी डेप्रिशिएशन क्लेम करना बाकी है। ठीक है, इनके पास एक ब्लॉक है जिसकी CSF WDB, ये मान लें थोड़ी देर के लिए WDB है यहाँ पे इनके पास से करीब करीब 40,000 रुपये। फिर कंप्यूटर्स वगैरह हैं, ऐसे कुछ कंप्यूटर्स हैं, उनकी ये ब्लॉक है। ठीक है, ऐसे इसमें A एंड B ऐसी 2 एसेट्स पड़ी हुई थी, ये ओपनिंग WDB। और साहब कंप्यूटर वाला पे 40% की रेट से डेप्रिशिएशन मिलता है। आप लोगों ने डेप्रिशिएशन रेट्स याद कर लिए? याद करें नहीं करें? अरे नालायको याद कर लो भैया मेरे। हाँ, तो कंप्यूटर पे रेट ऑफ डेप्रिशिएशन कितना है? 40%। तो ये साहब 40% रेट ऑफ डेप्रिशिएशन का ये ब्लॉक है। ठीक है, अब साहब इस 40,000 के ऊपर 40% डेप्रिशिएशन क्लेम भी कर लेगा, 16,000 रुपये, वो इसमें से और घट जाएगा। अब मिस्टर ए सोच रहा है करे तो क्या करें, क्या करें, कैसे यार बिना कुछ करे हुए अगर प्रॉफिट अगर मेरा घट जाए तो मज़ा आ जाए। तो अब इसका दिमाग चल रहा है, कुछ सोच रहा है क्या करे क्या ना करे। तो इसने क्या किया, इनके एक मिलने वाले थे एक भाई साहब, इनके अपने बड़े पुराने मित्र, उनसे एक बड़ा पुराना कंप्यूटर खरीदा ये 10 लाख रुपए का। देखो जरा, कंप्यूटर खरीदा है 10 लाख रुपए का, उसकी एक्चुअल कॉस्ट यहाँ पे जोड़ दी से, ये कोई कंप्यूटर C है। ठीक है ना, ये खरीद लिया इन्होंने सिर्फ 1 जुलाई 19 को 10 लाख रुपए में। तो साहब क्लोजिंग WDB आ जाती है इनकी क्या, ये 10,40,000 और कोई मनी पेबल वगैरह है ही नहीं तो नील, तो क्लोजिंग WDB आ जाती है बाद में ये साहब 10,40,000 रुपये। ठीक, और इस 10,40,000 के ऊपर इन्होंने डेप्रिशिएशन क्लेम किया कितना, 40%, आ गया 4,16,000 रुपये का डेप्रिशिएशन। ठीक है साहब, अब करा क्या इन्होंने, इसमें से इन्होंने डेप्रिशिएशन क्लेम कर लिया 4,16,000 और बोला प्रॉफिट हमारा है 5.84 लाख, ये PGBP। और इसके ऊपर टैक्स बताओ जरा, मोटा मोटा टैक्स बता दो कितना बनेगा 5,84,000 के ऊपर। 5 लाख पे 12,500 और 84,000 पे 20%, 80,000 का 20% हो गया 16,800, तो 12,500 प्लस 16,800, तो 12 और 16 28 और फिर 4% सेस वगैरह जुड़ा, मोटा मोटा मान लीजिए करीब करीब 30,000 इनका टैक्स आ गया अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, समझिए बात को। कहाँ 10 लाख में 16,000 डेप्रिशिएशन माइनस करके 9,84,000 प्रॉफिट आता, और अभी कितना 30,000 टैक्स इनका, ये 30,000 इन्होंने टैक्स का दे दिया।
रिटर्न वगैरह फाइल कर दिया साहब। समझ में आ रही बात? तय लगा लगा के समझिएगा। अब साहब मामला असेसिंग ऑफिसर की निगाहों में आया। उसने देखा कि ऐसे ऐसे एक बिजनेस है जिसमें 40,000 रुपये की एसेट थी और इस साल 10 लाख की एक एसेट खरीदी गई और ऐसे ये डेप्रिशन क्लेम करके इतना बिजनेस प्रॉफिट और ये टैक्स बंदा दे रहा है। तो असेसिंग ऑफिसर का दिमाग घूमा, यार कुछ दाल में काला है। तो इनके पास नोटिस भेज दिया उसने उठा के कि ऐसे ऐसे आप जरा अपने रिकॉर्ड्स वगैरह लेके आइए, हम सब चेक करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो भाई जो डेट इनको दी गई थी उस डेट पे ये पहुंचते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनसे सब पूछा गया, भाई क्या है, आप बुक्स वगैरह दिखाइए अपनी, और ये आपने 10 लाख रुपए का क्या खरीदा है? इन्होंने कहा सर 10 लाख रुपए का एक कंप्यूटर खरीदा है। कहते 10 लाख रुपए का कितने कंप्यूटर आपने खरीद लिए 10 लाख के रुपए? कहते कितने नहीं सर, एक कंप्यूटर खरीदा है 10 लाख रुपए का। वो हमारे फ्रेंड के पास एक बड़ा पुराना कंप्यूटर था जिसकी हमको ज़रूरत थी, तो वो हमने 10 लाख का खरीदा है। कहते 10 लाख रुपए का एक कंप्यूटर? कहते हाँ साहब एक कंप्यूटर। कहते अच्छा ठीक है जाइए, फिर आपको बताया जाएगा क्या करा जा रहा है आपके साथ। चला आइए। अब साहब असेसिंग ऑफिसर ने जानते हो क्या किया? इनके इस 4,16,000 रुपये के डेप्रिशन को उसने डिसअलाउ कर दिया। क्या कहा उसने? तो उसने कहा जो कंप्यूटर खरीदा है इसकी बहुत भी अगर हम मार्केट वैल्यू पकड़ लें तो हद से हद 10,000 रुपये का एक कंप्यूटर, 10,000 रुपये का कंप्यूटर। तो जो इन्होंने 10 लाख लिए थे इसको उसने काट के इसकी जगह पे क्या कर दिया, लाल पेन चला साहब, और इसकी वैल्यू ले ली उसने 10,000। समझ में आ रही बात? इसको डिसअलाउ कर दिया और डेप्रिसिएशन को रिकैलकुलेट किया उसने। तो साहब अब कितना आएगा? ये हो जाएगा 40,000 प्लस 10,000, ये 50,000। क्लोजिंग WDP भी यही आ जाएगी और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन 40%, 20,000 रुपये। तो उसने कहा साहब कि आपका जो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन 10 लाख था, इसमें से डेप्रिसिएशन के नाम पे आपको अलाउ होंगे सिर्फ 20,000 और आपका 9,80,000 रुपये आपका PGB बनता है और 9,80,000 पर जो टैक्स बनेगा वो टैक्स दीजिए। तो 9,80,000 अब कितना टैक्स बनेगा CA साहब? तो 5 लाख तक 12,500 और बाकी 4,80,000 का 20%। 4,80,000 का 20% हो गया 96,000। तो कैलकुलेटर ले लें यहाँ जरा। लो जी साहब, कैलकुलेटर भी ले लिया मैंने। आपने निकाला टैक्स कितना आ रहा है? तो CA साहब तो 9,80,000 है, तो इसमें से 4,80,000 के ऊपर 20% आ गया और प्लस 12,500 और 1,08,500 और 4% इस पे सेस का और जोड़ देंगे तो लगभग 1,12,840 रुपये, मेक इट 1,12,000। तो इस पे टैक्स आ गया सिर्फ 1,12,000। अब टैक्स निकालना नहीं सिखा रहा हूँ आपको, कंसेप्ट सिखा रहा हूँ क्या चल रहा है यहाँ पे। 1,12,000 टैक्स कह रहे हैं साहब 30,000 आपने पहले से दिया हुआ है, इसमें से माइनस कर दिया और बच जाता है ये क्या 82,000 और टैक्स आपको देना है और प्लस पेनल्टी। जो ये गलत सलत आपने काम करे हैं, ये टैक्स बचाने की जो नाकाम कोशिश आपने करी है, इस बात के लिए आपके ऊपर हम पेनल्टी का भी लगाएंगे। और CSR पेनल्टी मिनिमम 100% एंड मैक्सिमम 300% तक जाती है। मतलब इतना आपने जो टैक्स बचाने की जो कोशिश करी है, इतना ही अमाउंट पेनल्टी का कम से कम और मैक्सिमम 300%, 3 गुने तक। तो जब असेसिंग ऑफिसर 300% लगा सकता है पेनल्टी, तो भाई 100% क्यों लगाएगा? तो 82,000 को 3 टाइम्स कर दो इंटू 3, 2,46,000 उसने इसके ऊपर पेनल्टी का जोड़ दिया और कितने की डिमांड कर दी? ये हो गया साहब 3,38,000।
नहीं, ये 2 है, अभी ठीक है। 3,28,000 रुपीज़ टैक्स की उसने डिमांड रेज कर दी, डिमांड नोटिस भेज दी उसने 3,28,000 रुपीज़ देने के लिए। और साहब ये नोटिस मिस्टर ए के नाम पे उसने सर्व करवा दी। मिस्टर ए के पास नोटिस पहुंची इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। इसने नोटिस को पढ़ा, लिखा हुआ था उसमें आपने ऐसा ऐसा ये किया वो किया, और आपको 3,28,000 रुपीज़ टैक्स पे करना है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ दिस नोटिस। और अगर डिमांड नोटिस अगर आप नहीं कंप्लाई करते हैं, नहीं टैक्स पे करते हैं, तो फिर डिपार्टमेंट इस टैक्स की वसूली की फिर कार्रवाई शुरू करेगा। साहब इस नोटिस को पढ़ते ये चट से बेहोश होकर गिर गया। वो लेटर लिए नोटिस ले बेहोश हो गया। इनकी श्रीमती जी भागी आई, अरे क्या हो गया, अभी तो ठीक थे बिल्कुल, क्या हो गया, क्यों बेहोश हो गए। देखा हाथ में एक लेटर लिए हुए हैं, उसको पढ़ा कि ऐसे 3,28,000 रुपये का टैक्स 30 दिन के अंदर देना है। सब वो भी बेहोश हो गए चट्टा से। लो, दोनों मियाँ बीवी बेहोश पड़े हैं। बच्चे भागे आए और आके पानी के छींटे मारे, होश में बैठे आए। अब साहब दोनों जब होश में आ गए तो श्रीमती जी तो चालू हो गई मिस्टर ए के ऊपर, बिना मतलब कुछ सुने हुए चालू गरियाना शुरू कर दिया मिस्टर ए को कि देखा आपसे मना करते थे, सब उल्टे सीधे काम धंधे आप मत किया करें, लेकिन आपको तो समझ ही नहीं आती बात, आप तो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। अब ये 3-3.5 लाख रुपए का टैक्स जमा करने के लिए बोला है 1 महीने के अंदर। ऐसे माहौल में जब सब कुछ चौपट चल रहा है, लॉकडाउन, एक घर में खाने के लिए पैसे नहीं, कहाँ से 3.5 लाख रुपये जमा करोगे 3,30,000 रुपये 1 महीने के अंदर। अब मिस्टर ए तो वैसे ही परेशान था, बीवी की बातें सुन के और कल्पा जा रहा है ये। इसने कहा अच्छा चुप रहो तुम, सर ना खाओ हमारा। सर क्या ना खाए, कहाँ से दोगे जाके 3,30,000 रुपये। कहते रुक जाओ, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। अब साहब ये भागे उन वकील साहब के पास गए जिन वकील साहब ने इनको सलाह दी थी ऐसा करने के लिए। वकील साहब के सामने नोटिस की, कहते साहब देखिए आपने जो प्लानिंग करवाई थी, अब ये नोटिस आई है 3,30,000 रुपये जमा करने की, अब बताइए क्या करें इसका हम। वकील साहब ने नोटिस पढ़ी, कहते अरे साहब अब आपकी किस्मत ख़राब थी, आप फंस गए नहीं तो हम लोग तो न जाने ढेरों केस अभी तक ऐसे करवा चुके हैं, कहीं कोई नहीं पकड़ में आए, बट आपकी किस्मत ख़राब थी तो आप पकड़ में आ गए, अब तो भैया अब कुछ हो नहीं सकता। कहते ये मतलब कौन सी बात हुई, अब कुछ हो नहीं सकता, कुछ तो इसमें कोई रास्ता तो होगा। कहते नहीं साहब कोई रास्ता नहीं है, तो अब तो देने पड़ेंगे आपको 3,30,000 रुपये। अब साहब मिस्टर ए का दिमाग ख़राब है, करे तो क्या करे। तो इसको किसी ने बताया आपके बारे में, आप जैसे महान चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में कि सीए साहब के पास जाओ, हो सकता है वो कुछ रास्ता निकालें। अब मिस्टर ए साहब ढूंढते से हमारे पास आए, ठीक है ना, आए बैठे। तो मैंने कहा हाँ साहब बताएं कैसे क्या समस्या आपकी। तो उन्होंने नोटिस निकाल के दे दिया हमको, हमने पढ़ा, हमने कहा हाँ अब तो देने पड़ेंगे आपको 3,28,000 रुपये, 1 महीने का समय है। कहते साहब वो तो हम भी समझ रहे हैं कि 1 महीने के अंदर देने 3,28,000 रुपये, लेकिन कुछ रास्ता अगर हो तो बताइए इसका। हमने देखिए पहले तो शुरू से लेके अंत तक की एक एक बात बिल्कुल सही बताइए हमको। डॉक्टर और सीएस अगर कोई चीज़ छुपाओगे तो प्रॉपर इलाज नहीं हो पाएगा, समझ लीजिए। सही बताइए क्या किया था, पूरे सारे फैक्ट्स मुझको क्लियर कट ऑनेस्टली बता दीजिए, फिर देखता हूँ अगर कुछ हो पाएगा तो मैं बताऊंगा, नहीं तो फिर तो टैक्स तो देना ही देना है। तो साहब मिस्टर ए ने पूरी कहानी क्या थी हमको एक डिट्टो जो है सब बता दी। हमने भी पूरी कहानी सुनी समझी। हमने साहब आपने काम तो गलत किया है, और आप लोग जो है ऐसे उल्टी सीधी सलाह के ऊपर काम करने लग जाते हो, फिर बाद में जब फंस जाते तो हम लोग पास आते, पहले आके पूछते आके तो हम कुछ आपको सही रास्ता बताते। क्या ये बेवकूफ़ी वाले काम है आप। कहते साहब अब तो जो हो गया, अब तो किसी तरह से बचाओ इसको। हमने साहब देखिए प्रयास कर सकते हैं लेकिन फ़ीस पड़ेगी इसकी। कहते सर आपको फ़ीस हम देंगे। क्या फ़ीस आप चार्ज करते हैं। मैंने कहा सर देखिए हमारा रेट तो बिल्कुल खुला हुआ है, 25% अपनी फ़ीस है। कहते 25% मतलब, हमने 25% मतलब सीधे पहले भी आपको एक दिन अपनी फ़ीस बता चुका हूँ मैं।
कि जो भी आपकी सेविंग होगी टैक्स की उसका 25% मेरा। मतलब जैसे ये 3,28,000 रुपये है, अगर मान लें घट के 3 लाख पे आ जाता है तो 28,000 की सेविंग हुई। अब 28,000 जो आपका बच रहा है 25% आप हमको दे दो। 75% आपकी सेविंग है, 25% मेरी फीस है। भाई 28,000 की सेविंग हो गई आपकी, तो कितना हो गया 25%, 7,000 हमारी फीस हो गई। और अगर मान लें ये घट के 28,000 पे आ जाता है, 3 लाख रुपए अगर आपके बचते हैं तो 3 लाख का 25% 75,000 फिर लूंगा फीस का। जो भी होगा, जो भी सेविंग होगी उसका 25%। मंजूर हो तो बताइए, नहीं तो 3,28,000 रुपये देने का अरेंजमेंट करिए, फिर अरेंज करिए पैसा। मिस्टर ये सोचता रहा, कहता अच्छा चलिए ठीक है साहब देंगे। मैंने ठीक, मैंने मेरे फेवर में ये पावर ऑफ अटॉर्नी है, इसको जरा आप साइन कर दीजिए सो दैट कि हम आपके केस को ऑफिसर के सामने पुटअप कर सकें। उसने ठीक है साहब, तो उसने हमारे फेवर में पावर ऑफ अटॉर्नी, ये लॉ वगैरह में आप पढ़ेंगे जिसको हिंदी में वकालतनामा भी कहते हैं, इंग्लिश में पावर ऑफ अटॉर्नी, वो उसने हमारे फेवर में साइन कर दी कि हम उनके बन जाते हैं क्या, अब ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। मैं उनके केस को अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अब सीए साहब मैं पहुंच जाता हूं इनकम टैक्स ऑफिस। ये इनकम टैक्स ऑफिसर है का रूम है, ठीक है। ये ऑफिसर बैठा हुआ है, इधर सामने चेयर पे मैं बैठ जाता हूं जाके। मैं पहुंचा, मैंने कहा गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, आइए बैठिए। मैंने वो पावर ऑफ अटॉर्नी इनके टेबल पे रखी और वो नोटिस रखी। मैंने कहा सर इस नोटिस के रेफरेंस में आया हूँ। कहते हाँ, ये आप लोग अपने क्लाइंट्स को सब गलत सलाह देते रहते हैं और उसके बाद जो है आप लोग फंसा देते हैं उसको, तो टैक्स जमा करवाइए। कहते साहब वो तो टैक्स तो जो बनेगा वो तो जमा करवा ही देंगे, लेकिन जरा आप हमको ये बताएंगे कि आपने ये किस बेसिस पे आपने ये ट्रीटमेंट कर दिया, कहाँ से आपने 3,28,000 रुपये की डिमांड रेज कर दी, हमें भी बताइए। कहते मिस्टर द्विवेदी आप मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट होकर ऐसी बातें कर रहे हैं। मैंने कहा चार्टर्ड अकाउंटेंट तो तभी ऐसी बातें कर रहा हूँ, किस वजह से आपने ये काम किया जरा मुझे भी तो बताइए, कौन से सेक्शन ने आपको ऐसा करना अलाउ किया। कहते साहब ये बताइए, ये कंप्यूटर 10 लाख रुपए का खरीदा है जिसकी मार्केट वैल्यू मैंने बहुत ज़्यादा ले ली है 10,000 रुपये। मैंने कहाँ से आपने मार्केट वैल्यू पता करवाई, कौन सी मार्केट से आपने मार्केट वैल्यू पता करवाई। जो कंप्यूटर खरीदा है वो मार्केट में मिल भी रहा है, जो उसकी मार्केट वैल्यू आप पता करवा लाए। ये 15 साल पुराना कंप्यूटर है, आज की तारीख में मार्केट में उसका कोई उस तरह के कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम अवेलेबल ही नहीं है। आपने कहाँ से इसकी मार्केट वैल्यू पता कर ली 10,000 रुपये। कहते साहब फिर भी तो 10,000 रुपये तो बहुत ज़्यादा है इसकी सेकेंड हैंड कंप्यूटर की। हमने साहब वो तो आपके हिसाब से 10,000 रुपये वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ऐसी जिसको इस कंप्यूटर की ज़रूरत थी उसके लिए तो साहब ये वैल्यू उसने 10 लाख रुपये पे करी उसने। कहते साहब ये कंप्यूटर मिस्टर ए ने अपने एक फ्रेंड से, उनके पास अपना एक पुराना कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर पड़ा हुआ था, तो जो उनका अपना पीसी था पर्सनल कंप्यूटर उनके पास यूज़ में नहीं था, और इनके पास ढेर सारे ऐसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं ये मिस्टर ए के पास, जो आज की तारीख में जो कंप्यूटर्स आ रहे हैं उस पर चलते ही नहीं है, क्योंकि वो अब एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हैं, एडवांस फीचर्स वाले हैं। तो जो पुराने जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह जैसे टैली वगैरह है, अब टैली हमारे पास से 4.5 वर्जन है अकाउंटिंग का, सबसे पहले लॉन्च हुआ था टैली 4.5। अब टैली 4.5 वर्जन अगर हम आज की तारीख के जो हमारे पास सिस्टम्स आ रहे हैं उस पर अगर हम चलाएं, चलेगा ही नहीं वो कहेगा अपग्रेड करिए अपने सॉफ्टवेयर को आप। और हमारे क्लाइंट की आदत अकाउंटिंग करने की टैली 4.5 पे है, बाकी जो आज की तारीख में टैली के वर्जन आ रहे हैं उसमें उसको कंफर्टेबल नहीं, वो काम ही नहीं कर पाता है। तो उसे 4.5 टैली वर्जन चलाने के लिए जो सिस्टम चाहिए वो सिस्टम मार्केट में अवेलेबल नहीं था। हाँ, इनके एक मित्र के पास वो पड़ा हुआ था, तो उससे इन्होंने बोला, तो अब साहब जो यूनिक चीज़ें हो जाती, जो एंटिक चीज़ें हो जाती, तो फिर उनकी तो वैल्यू बढ़ जाती ना। आप तो इतना जानते हैं ना, पुरानी विंटेज कार होती हैं आज की तारीख में, वो विंटेज कार रैली होती है कानपुर में, आप देखते हैं ना, एक से एक पुराने ज़माने की वो 100 साल पुरानी कार है, वो चल रही है सड़कों के ऊपर। वो तो क्या मतलब वो हाईवे पे भगाने के लिए थोड़े नहीं है, बट लोग अपने पास रखे हुए हैं। अब उनसे पूछिए आज की तारीख में वो पुरानी कार कितने की वो बेचेंगे, लाखों रुपए में बेचेंगे। अब आप कहोगे कि वो तो पुरानी कार है 100 साल पुरानी, आज की तारीख में तो 5-5 हज़ार में मिल जाएगी, तो ये कोई बात हुई। तो ये भी एक प्रकार से विंटेज कंप्यूटर था, सब पुराना एंटिक पीस जो बड़ी किस्मत से मिल गया उसके पास।
और उसने इस बात के 10 लाख रुपए दिए, तो साहब इनको जरूरत थी तो 10 लाख में इन्होंने खरीदा। क्या इसमें दिक्कत है आपको? और फिर कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है कि हम अगर ऐसी चीज खरीदते तो आप उसकी वैल्यू 10, ये जितने में खरीदी वो नहीं लेंगे, आप अपने हिसाब से मार्केट में ले लेंगे? कहां लिखा है? कौन सेक्शन ने आपको ऐसा करने की पावर दी? अब ऑफिसर बोला, मिस्टर द्विवेदी आपने शायद सेक्शन 43(1) का एक्सप्लेनेशन 3 पढ़ा नहीं है। हमने साहब हमने बहुत पढ़ा है, जितना पढ़ा नहीं उससे ज़्यादा हमने पढ़ाया है। आप इनकम टैक्स एक्ट उठाइए, पढ़ लीजिए और हमें बताइए एक्सप्लेनेशन 3 इसमें अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कहते मिस्टर द्विवेदी आप जबरदस्ती की बहस कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, जबरदस्ती की बहस नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे एक्सप्लेनेशन 3 पढ़ के तो सुनाइए, देखिए एक्सप्लेनेशन 3 इस पर अप्लाई भी होता है कि नहीं होता है। कहते रुकिए अभी हम पढ़ के सुनाते हैं आपको। अब साहब इनकम टैक्स एक्ट निकाला गया, वहाँ वीके सिंघानिया की बुक से थोड़ा नहीं काम चलेगा, वहाँ तो एक्ट चाहिए, बेयर एक्ट। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 निकाला गया। मैंने कहा सर खोलिए इसका सेक्शन 43 का सब सेक्शन 1 उसका एक्सप्लेनेशन 3। मैंने सर रीड करिए, ना रीड करें तो हम डिक्टेट कर दे रहे हैं, हमें तो रटा पड़ा हुआ है। हमने सर देखिए क्या लिखा हुआ इसमें, वेयर बिफोर द डेट ऑफ एक्विजिशन बाय द एसएससी। मैंने सर आप ही पढ़ दीजिए आगे से, अब असेसिंग ऑफिसर पढ़ के सुना रहा है। कह रहे सर वेयर बिफोर द डेट ऑफ एक्विजिशन बाय द एसएससी। मिस्टर द्विवेदी आपके क्लाइंट के एक्वायर करने से पहले द एसेट्स वर एट एनी टाइम यूज्ड बाय एनी अदर पर्सन। जिससे आपके क्लाइंट ने कंप्यूटर खरीदा है वो इसको किसी पहले यूज कर रहा था। एंड द मेन पर्पस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ सच एसेट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द एसएससी। ये तो डायरेक्टली आपके क्लाइंट ने खरीदा है ना अपने फ्रेंड से। मैंने हाँ, वॉज द रिडक्शन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, टैक्स बचाने की कोशिश करी गई। मैंने कहा कहाँ टैक्स बचाने की कोशिश करी? कहते सुन लीजिए, बाय क्लेमिंग डेप्रिशिएशन विद रेफरेंस टू एन इनहेंस्ड कॉस्ट। 10-10 हज़ार रुपए की जो चीज़ मारी मारी घूम रही है वो 10 लाख रुपए में खरीद के आपने बढ़ी हुई कॉस्ट पर डेप्रिशिएशन क्लेम करके टैक्स बचाने की कोशिश करी है। मैंने साहब अब ऐसे मत पढ़िए, देखिए जैसे हमको पता नहीं है, जरा कायदे से पढ़िए एक एक वर्ड। मैं सुना रहा हूं क्या लिखा हुआ उसमें, वेयर बिफोर द डेट ऑफ एक्विजिशन बाय द एसएससी। यस, मेरे क्लाइंट के एक्वायर करने से पहले द एसेट्स वर यूज्ड बाय एनी अदर पर्सन। यस, इन्होंने जिन मिस्टर एक्स से ये खरीदी है वो इसको यूज किया करते थे फॉर द पर्पस ऑफ हिज बिजनेस और प्रोफेशन। सर जिससे खरीदी है, हमारे एक्वायर करने से पहले जो भी कोई इस एसेट को यूज करता था, यूज भी किस काम के लिए होना चाहिए? फॉर द पर्पस ऑफ हिज बिजनेस और प्रोफेशन। साफ लिखा है, वेयर बिफोर द डेट ऑफ एक्विजिशन बाय द एसएससी द एसेट्स वर एट एनी टाइम यूज्ड बाय एनी अदर पर्सन फॉर द पर्पसेस ऑफ हिज बिजनेस और प्रोफेशन। सर तो जिन मिस्टर एक्स से ये कंप्यूटर खरीदा गया है, ये उनका पर्सनल कंप्यूटर, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा था। ये रहा मिस्टर एक्स का, उसका अपना पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न। वो एक सैलरीड एम्प्लॉय है, सैलरी हेड की इनकम आती है, थोड़ा बहुत उसको इंटरेस्ट मिलता है, कहीं उसके पास पीजीबीपी हेड की इनकम नहीं है। मतलब कि हमने जिससे कंप्यूटर खरीदा था वो इसको अपने किसी बिजनेस या प्रोफेशन के यूज में नहीं ला रहा था। तो जब जिससे हमने खरीदा था वो इसको अपने बिजनेस या प्रोफेशन के यूज में ला ही नहीं रहा था, तो सर ये एक्सप्लेनेशन 3 का मामला ही नहीं है। एक्सप्लेनेशन 3 के अकॉर्डिंगली तो हम जिससे एसेट खरीदते हैं वो उस एसेट को अपने बिजनेस या प्रोफेशन के यूज में ला रहा हो, तभी एक्सप्लेनेशन 3 अट्रैक्ट होगा। सर तो इस केस में तो एक्सप्लेनेशन 3 अट्रैक्ट ही नहीं हो रहा है, आपने भला कहां से कर दिया? आपको एक्सप्लेनेशन 3 पावर ही नहीं देता है ऐसी सिचुएशन में कुछ करने के लिए। अब साहब असेसिंग ऑफिसर का दिमाग घुमा, कहते लोग क्या ही मिस्टर द्विवेदी हमको एक बार फिर से देखने दीजिए। मैंने एक बार नहीं 10 बार पढ़िए साहब। अगर हम कोई काम गलत करते हैं, वैसा करते जैसा एक्ट मना करता है, तो आप हमको पेनलाइज करिए। सिमिलरली आप भी वही काम कर सकते हैं जो करने की पावर आपको ये एक्ट देता होगा। तो सब एक्सप्लेनेशन 3 तो इस सिचुएशन में अट्रैक्ट हो ही नहीं रहा है, तो फिर भला आपने कैसे ये काम कर दिया? और तो और उसके ऊपर पेनल्टी भी लगा दी, कंसीलमेंट ऑफ इनकम की पेनल्टी 300%। सर क्या बच्चा समझ के रखा हुआ है? अपने मनमानी तरीके से काम करोगे आप लोग? फिर बोला हाँ मिस्टर द्विवेदी बात तो आप सही कह रहे हैं। मैंने कहा यस, मैं तो कह ही रहा हूं सही बात। आप लोग क्यों खामखा में लोगों को हैरेस करते हैं, परेशान करते हैं? आप इस अपनी डिमांड नोटिस को वापस लेते हैं तो ठीक, नहीं तो मैं आगे अपील में जाऊंगा।
अपील करूंगा आपके इस फैसले के अगेंस्ट में। अपील से भी बात नहीं बनेगी तो और ऊपर ट्राइब्यूनल में जाऊंगा, हाई कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। साहब इतनी आसानी से मैं आपको नहीं छोड़ने वाला हूं, सुप्रीम कोर्ट से जीत के आऊंगा केस। अभी तो मामला रूम के अंदर का है, नोटिस विड्रॉ कर लीजिए, नहीं तो कल कोई बात फैलेगी, आपके भी डिपार्टमेंट में थू थू होगी और फिर जो गलत सलत काम कर रहे हो इस बात के लिए फिर आपके ऊपर फिर चार्जेस भी लग सकते हैं, समझ लीजिए। नहीं तो अगर आप भला चाहते हैं तो इस नोटिस को चुपचाप विड्रॉ कर लीजिए। साहब असेसिंग ऑफिसर ने ये नोटिस विड्रॉ कर ली और जो भी ये कुछ किया था ये सारा का सारा मामला ख़त्म कर दिया गया और मामला फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे रीस्टोर हो गया। 1 भी रुपये टैक्स मिस्टर ए को नहीं देना पड़ा। अरे साहब मिस्टर ए तो पगलाया घूम रहा है। मैंने सब पगलाना बाद में, नाचिएगा बाद में। 3,28,000 रुपये की पूरी आपकी सेविंग हुई, इसका 25% कितना बनता है तो जाओ बता दूँ जरा। 3,28,000 का 25% 82,000 बनता है। राउंड फिगर में 80,000 रुपये हमारी फीस का दे दीजिए। आप 2,000 रुपये छोड़ दिए आपसे, हमारी पहली डील थी इसलिए। सब 80,000 रुपये हमको फीस के मिले, एक झटके में पूरी पढ़ाई का खर्चा बाहर। मैंने ठीक है चलता हूँ। लो ही साहब मिस्टर ए पगलाया घूम रहा है। कुछ दिनों के बाद पता है क्या हुआ? लंबी चौड़ी जरा गहरी सांस लीजिए, फिर बताऊं कि इस सीन में अभी ट्विस्ट होना बाकी है। सांस लीजिए, पानी पीजिए, फिर बताऊं आगे क्या हुआ। हाँ जी साहब जी, तो ये मिस्टर ए का तो खेल ख़त्म हो गया। ये तो बेचारा बच गया, 3,28,000 की इसकी सेविंग हो गई। 80,000 रुपये हमको फीस के भी मिल गए। अब हुआ क्या? अब जरा देखो, अब हुआ ये कि असेसिंग ऑफिसर ने मिस्टर एक्स के पास नोटिस भेज दी। क्या किया इसने मिस्टर एक्स को नोटिस भेज दी। क्यों भेज दी मिस्टर एक्स? मिस्टर एक्स कौन है जानते हैं आप? मिस्टर एक्स वही हैं जिनसे मिस्टर ए ने ये उनका पर्सनल कंप्यूटर परचेज किया था। तो सीए साहब, मिस्टर एक्स का अब जरा सीन देखो जरा क्या है। मैं उसको इनकम टैक्स रिटर्न दे के आया था ना अपना, इसका मिस्टर एक्स का। मिस्टर एक्स को इसने जो नोटिस भेजी उसमें इसने बोला कि सर आपने अपना एक पुराना कंप्यूटर, मान ले रहा हूँ कि आपने उसको 10,000 रुपये में ख़रीदा होगा, मान लिया 10,000 आपकी उसकी कॉस्ट रही होगी, क्योंकि मुझे पता चला है कि करीब आपका 15-20 साल पुराना कंप्यूटर था। तो आपने मान ले 10,000 में ख़रीदा था और जिसको आपने मिस्टर ए को 10 लाख रुपए में बेचा तो आपका कैपिटल गेन अराइज हुआ 9,90,000 रुपये। 10 लाख रुपए में आपने कंप्यूटर बेचा है, जिसको आपने खरीदा कितने में था? 10,000 रुपये में। तो आपका 9,90,000 रुपये का कैपिटल गेन। कैसा कैपिटल गेन? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आगे हम लोग कैपिटल गेन चैप्टर में पढ़ेंगे कि साहब 3 साल के बाद चीज़ें लॉन्ग टर्म हो जाती हैं। इनकम टैक्स के हिसाब से 36 मंथ्स के बाद चीज़ लॉन्ग टर्म की तरह से ट्रीट करी जाती है। अप टू 36 मंथ्स शॉर्ट टर्म की तरह से ट्रीट करी जाती है। तो बोला कि भाई आपका ये 9,90,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर सीधे सीधे 20% टैक्स लगता है। तो 9,90,000 का 20% टैक्स आपका बनता है। कितना बना? 9,90,000 का 20% 1,98,000 और इसके बाद सेस वगैरह जोड़ देंगे तो ये भी साहब ये 2 लाख के ऊपर ही निकल जाएगा। लेकिन मोटा मोटा 2 लाख रुपए टैक्स का निकाल दिया। और आपने ये इनकम अपने रिटर्न ऑफ इनकम में डिस्क्लोज नहीं करी है, आपने ये इनकम छुपाई है, इसलिए आपके ऊपर कंसीलमेंट ऑफ इनकम की पेनल्टी भी लगाई जाती है। खिसियाया हुआ तो वो वैसे ही था असेसिंग ऑफिसर,
300% पेनल्टी लगा दी। 300% पेनल्टी समझते ना, 2 लाख रुपए तो कम से कम लगनी पेनल्टी थी। 300% बोले तो 6 लाख रुपए की पेनल्टी लगा दी इसके ऊपर, और 8 लाख रुपए की डिमांड नोटिस भेज दी गई। देखिए जरा हालत। मिस्टर एक्स के पास नोटिस पहुंची इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से 8 लाख रुपए टैक्स देने की विदिन 30 डेज। अब साहब मिस्टर एक्स के पास जब नोटिस पहुंची तो ये तो पागल हो गया, पगला गया बिल्कुल, इसके नीचे तन बदन में आग लग गई इसके बिल्कुल। इसने तुरंत फोन लगाया मिस्टर ए को, जिसको इसने कंप्यूटर बेचा था। इसने मिस्टर ए को फ़ोन किया। इसने कहा भाई साहब जहाँ कहीं भी हो तुरंत हमारे घर पे आइए। मिस्टर ए ने कहा भाई साहब सब कुछ सब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। कहते नहीं दिक्कत तो अब जो है सो है, लेकिन तुरंत जहाँ कहीं सारे काम धंधे छोड़ के आप तुरंत मेरे घर पे आइए। आप साहब ऐसे अगर कोई बोल दे फ़ोन करके तो आदमी का दिमाग तो ख़राब हो ही जाएगा। खैर मिस्टर ए पहुँचे मिस्टर एक्स के यहाँ, और ये तमतमाए हुए नोटिस हाथ में लिए बैठे हुए थे। मिस्टर ए जब पहुँचे तो मिस्टर ए के मुंह पे मिस्टर एक्स ने ये नोटिस भेजा। कहते सब ये नोटिस आई, जरा देखिए पढ़िए। पढ़ा मिस्टर ए ने। अब मिस्टर ए का दिमाग ख़राब। कहते भाई साहब वो कंप्यूटर जो हमने आपसे लिया था उसी का नोटिस है। कहते हाँ वो हम समझ रहे हैं, वो जो आप प्लानिंग कर रहे थे ना, टैक्स प्लानिंग, हमारा पुराना जो खटारा कंप्यूटर जो आपने लिया था, वो बोले थे 10 लाख रुपए में, और पैसे दिए नहीं हो तुम अभी तक। 10 लाख तो छोड़ो, तुम 10,000 भी नहीं दिए हो अभी तक, और कह रहे थे कि वो हम इनकम टैक्स में प्लानिंग कर रहे हैं तो ये है वो है, हमारे कुछ फ़ायदा हो जाएगा। और ये जो 8 लाख रुपए टैक्स भेजने के जो जमा करने का जो 30 दिन का जो नोटिस आया है, 30 दिन में जमा करना है 8 लाख रुपए, ये कौन जमा करेगा? हम तो ना जमा करेंगे 1 रुपया इसमें, 8 रुपये मैं नहीं जमा करूँगा, ये सब आपकी वजह से हुआ है। अब मिस्टर एक्स जो है भर भर बातें सुना रहा है मिस्टर ए को। मिस्टर ए कह रहा है भाई साहब इसमें हमारी क्या गलती? कहते क्यों? आप नहीं तो, आपकी ही तो टैक्स प्लानिंग थी, हम तो कह रहे थे नहीं ये सब कुछ नहीं। कौन एक्सेप्ट करेगा यार? 2, 4, 5, 10,000 रुपए की चीज़ को 10 लाख में कौन मानेगा? इस चीज़ को बेवकूफ़ समझ रखा है तुमने सबको क्या? तो मिस्टर ए ने कहा भाई साहब अब तो भाई क्या करें, अब तो जमा करने पड़ेंगे 8 लाख, और हम क्यों जमा करें भाई? ये तो नोटिस आपके पास आई है, हम क्यों जमा करें? मिस्टर एक्स ने कहा भाई आपकी वजह से ये हुआ है, आपको जमा करने पड़ेंगे 8 लाख, हम नहीं देंगे इसमें से। मिस्टर ए ने कहा भाई साहब ये डायरेक्ट टैक्स है, बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। एक्स ने कहा मार देंगे कंटाप तुम्हारे, खींच के समझ लेना, हमको समझाओ नहीं कि डायरेक्ट टैक्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, हम तुम्ही को शिफ्ट कर देंगे, समझ लेना दूसरी दुनिया में। बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, हमें मत ज्ञान दो। ये 8 लाख आपकी वजह से मेरे ऊपर ये लायबिलिटी है, आप 8 लाख जमा करो। ए ने कहा भाई साहब हम ना जमा करेंगे 1 रुपया, साहब बात। एक्स ने कहा ये तो मतलब तुमने हमको फंसा दिया जबरदस्ती में, और उसमें लिखा हुआ है कि 30 दिन के अंदर 8 लाख रुपए जमा करो, नहीं तो 8 लाख की वसूली करेंगे आके, वो हमारे घर की कुड़की करेंगे, घर को सब सामान बेच देंगे आके। गवर्नमेंट रेवेन्यू है सब, गवर्नमेंट ड्यूज तो देने ही देने पड़ेंगे, ऐसे कैसे मतलब नहीं देना है? और सुना आपके पास भी नोटिस आई थी। एक्स ने बोला मिस्टर ऐसे कि सुना आपके पास भी नोटिस आई थी इनकम टैक्स वाला से, क्या हुआ आपका, आपके केस का क्या हुआ? कहते साहब वो तो हमारा तो केस निपट गया था, वो तो बच गए थे, हम तो 1 भी रुपया टैक्स नहीं। हाँ तो खुद को बचवा लिया और हमको फंसा दिया। कितना टैक्स आपसे मांगा गया था? सर हमसे तो 3-3.25 लाख के आसपास टैक्स मांगा गया था, और वो भी बच गया। अच्छा खुद बचा लिए और हमको फंसा दिए हैं, 8 लाख रुपए हम दे और हमको समझा रहे डायरेक्ट टैक्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। हम नहीं जानते, इस केस को आपको ही निपटवाना पड़ेगा। कहते साहब हम क्या निपटवाएंगे, वो तो एक सीए साहब के पास गए थे, उन्हीं ने कुछ ऐसा किया था जो हम बच गए थे। मिस्टर एक्स ने कहा हमको भी ले चलिए उन सीए साहब के पास, ऐसे थोड़ा नहीं होता है। कहते चलिए आप भी चलिए सीए साहब के पास। तो साहब मिस्टर ए जो है मिस्टर एक्स को लेके एक बार फिर से हमारे पास आ गए, फिर आके मेरे ऑफिस में बैठे हुए हैं दोनों लोग। मैंने हाँ भाई साहब बताएं मिस्टर ए क्या हो गया, अब तो आपका सारा केस निपट गया था, अब क्या समस्या आ गई? कहते साहब आपने हमारे को तो बचा लिया था, और ये इनकम टैक्स ऑफिसर ने ये भाई साहब के पास नोटिस भेज दी, वही जिनसे हमने कंप्यूटर खरीदा था। हमने यार ये बड़ा शैतान टाइप का ऑफिसर है यार, ये तो दुखी कर रहा है। तो कहते भाई साहब आप बाकी तो आप सारे फैक्ट्स जानते ही केस में क्या था क्या नहीं था, अब बताइए अब कैसे क्या होगा? हमने कैसे क्या होगा, अब तो कुछ जैसे तैसे हमने बचा लिया था,
अब भाई साहब आप मिस्टर एक्स आपको तो देने पड़ेंगे 8 लाख रुपए, 1 महीने का समय है। एक्स ने कहा भाई साहब कुछ तो करिए, ये तो मना कर रहा है कि हम 1 रुपया भी नहीं देंगे, तो हमको तो जैसे तैसे फिर 8 लाख देने पड़ेंगे फिर तो। हमने हाँ सर देने तो पड़ेंगे, उसमें ऐसी कौन सी बात है। एक्स ने कहा सर सरकार जैसे तैसे हमको बचा लो, कैसे बचा लो। हमने सब प्रयास करके देखते हैं, हो पाएगा तो ठीक है, बाकी मिस्टर ए से मैंने कहा भाई साहब आपने इनको मेरी फ़ीस बता दी है? कहते हाँ सर फीस हमने बता दी है। कहते वो सर जो है वो 25% फ़ीस चार्ज करते हैं, जो भी बचेगा उसका 25%। अगर ये 8 लाख रुपए का अमाउंट घट के मान ले से 6 लाख रह जाता है, 2 लाख बचेगा तो 50,000 भाई साहब फीस ले लेंगे। एक्शन का भाई साहब आपकी फ़ीस तो बहुत ज़्यादा है। हमने फ़ीस क्या ज़्यादा, मतलब जितनी बचत होगी 75% आपकी बचत, 25% हम ही तो ले रहे हैं। रुपए में 25 पैसे हमको मिलेगा, 75 पैसे आपको मिलेगा, ज़्यादा इसमें क्या है। कहते ठीक है भाई साहब देंगे फ़ीस का जो भी होगा। हमने हाँ तो ऐसा करिए पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे नाम पे साइन करिए, देखता हूँ कोशिश करके देखता हूँ, प्रयास करता हूँ जो होगा। अब साहब मिस्टर एक्स ने हमारे फेवर में पावर ऑफ अटॉर्नी साइन कर दी। फिर मैं ये नोटिस वोटिस लेके फिर पहुँचा मिस्टर असेसिंग ऑफिसर के पास, पहुँचा इसके रूम में। मैंने कहा गुड मॉर्निंग सर, पहचाना? उसने कहा हाँ साहब आइए मिस्टर द्विवेदी आइए, आपको क्यों नहीं पहचानेंगे। बैठा जाके मैंने वो नोटिस और वो पावर ऑफ अटॉर्नी मिस्टर असेसिंग ऑफिसर टेबल पे रखी थी। मैंने कहा सर ये देखिए आप। कहते सर और बताए कैसे आना हो। मैंने कैसे क्या, आप लोग बुलाते रहते हो तो हम लोग आते रहते हैं, हमारा तो काम यही है। कहते मिस्टर द्विवेदी इस बार तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। हमने कहा कोई बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन कम से कम आपसे बातचीत तो कर ही सकते हैं ना। भाई ये बताएं, ये आप क्यों जबरदस्ती में लोगों को परेशान करते रहते हैं? क्यों बेचारे सीधे साधे आदमी को आपने 8 लाख रुपए टैक्स की डिमांड नोटिस, मतलब कोई ईमान धर्म नहीं है। 8 लाख रुपए कोई बेचारा कैसे देगा भाई, सोचिए जरा। लॉकडाउन का टाइम है, 8 लाख रुपए कैसे देगा कोई? कहते साहब जब गलत सलत काम करोगे तो टैक्स तो देना ही पड़ेगा। हमने क्या गलत किसी ने कर दिया भाई? कहते मिस्टर द्विवेदी ये जो इन्होंने कंप्यूटर बेचा अपना 10,000 का 10 लाख में। मैंने कहा हाँ तो 10,000 चीज 10 लाख में बेच दी तो क्या गुनाह कर दिया, कोई गलत काम कर दिया? खरीदने वाला तैयार था 10 लाख में चीज खरीदने की, तो बेचा, उसमें क्या समस्या है? कहते नहीं सर समस्या इसमें नहीं कि आपने 10,000 चीज को 10 लाख में बेचा, समस्या ये है कि जो आपने कमाया है उसके ऊपर टैक्स क्यों नहीं दिया। हमने काहे का टैक्स सर, किस बात का टैक्स? जबरदस्ती में मतलब टैक्स कैसे क्यों कोई टैक्स देगा? कहते क्यों 10,000 की चीज 10 लाख में बेची गई तो 9,90,000 कैपिटल गेन नहीं अराइज हुआ। मैंने कहाँ से कैपिटल गेन अराइज हुआ, आप भी कैसी बातें करते हैं सर। कहते मिस्टर द्विवेदी देखिए अब इस बार खामखा की बहस मत करिए। मैंने कहा तो सर क्या मैंने लास्ट टाइम खामखा की आपसे बहस करी थी जो इस बार मैं खामखा की बहस ना करूं? मिस्टर द्विवेदी ये कैपिटल गेन है। मैंने कहा भाई कैसे कैपिटल गेन है, मुझे भी तो समझाइए, हम भी तो समझें। मैंने कहा कब कैपिटल गेन अराइज होता है सर, हमको बताइए कब कैपिटल गेन लायबिलिटी अराइज होती है किसी की? कैसे मिस्टर द्विवेदी आपने शायद 45 सबसेक्शन 1 नहीं पढ़ा है। मैंने कहा सर मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कहा था, मैंने जितना पढ़ा नहीं है उससे ज़्यादा मैंने पढ़ाया है सर लोगों को। आप क्यों नहीं इस बात को समझते हैं? मैंने 45(1) को भी बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है। तो मिस्टर द्विवेदी आप 45(1) को अगर पढ़ें तो उसमें साफ लिखा हुआ है एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। मैंने हाँ सर लिखा तो यही है सर, लेकिन लिखा हुआ है कि एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। सर ये जो कंप्यूटर बेचा है मिस्टर एक्स ने मिस्टर ए को, क्या ये कैपिटल एसेट है? अगर कैपिटल एसेट है तो कैपिटल गेन अराइज होगा, और अगर कैपिटल एसेट नहीं है तो कैपिटल गेन नहीं अराइज होगा। कहते हैं हाँ सर बिल्कुल बात सही कह रहे हैं आप, तो कैपिटल एसेट तो ये है ही। मैंने कैसे कैपिटल एसेट, किसको कहते हैं कैपिटल एसेट? एंड कैपिटल एसेट की डेफिनेशन सेक्शन 2 के सब सेक्शन के क्लॉज 14 में दी गई है। सेक्शन 2 का क्लॉज 14 डिफाइन करता है कि कैपिटल एसेट किसको कहते हैं। फिर असेसिंग ऑफिसर बोला सर कैपिटल एसेट की डेफिनेशन तो आपने पढ़ी होगी ना 214 में। हमने सर फिर आपने वही बात कर दी, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? सर मैंने पढ़ी भी है और पढ़ाई भी है, आपने शायद नहीं पढ़ी है अभी तक। हाँ जी बताइए क्या लिखा है कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में? कहते सर सुनिए कैपिटल एसेट में साफ साफ लिखा हुआ है
कैपिटल एसेट इज डिफाइंड टू इंक्लूड प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड. कैपिटल एसेट इज डिफाइंड टू इंक्लूड प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड वेदर मूवेबल और इमूवेबल. सर तो कंप्यूटर है, मूवेबल हो चाहे इमूवेबल फर्क नहीं पड़ता है. मैंने कहा जी. वेदर टेंजिबल और इनटेंजिबल, तो टेंजिबल है. मैंने सर आगे पढ़े. सर तो कैपिटल एसेट इज डिफाइंड टू इंक्लूड प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड वेदर मूवेबल और इमूवेबल, टेंजिबल और इनटेंजिबल. एंड मिस्टर द्विवेदी ध्यान सुनिएगा, वेदर और नॉट कनेक्टेड टू द बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ द एसएससी. वो एसेट आपके बिजनेस या प्रोफेशन से कनेक्टेड हो चाहे ना हो, वो कैपिटल एसेट है. मिस्टर द्विवेदी इस बार आप बचा नहीं पाएंगे. आपने लास्ट टाइम कहा था कि इनका बिजनेस नहीं है, तो कोई बात नहीं. जो एसेट बेची गई है वो बिजनेस से कनेक्टेड हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कैपिटल एसेट है. मैंने हाँ सब बात तो आप सही कह रहे हो, इस बार आप सही हो. लेकिन सर बात अभी खत्म नहीं हुई, बात को जरा आगे बढ़ें. आगे देखिए क्या लिखा है 214 में. हाउएवर, मैंने लास्ट टाइम पे कहा था ये हाउएवर वर्ड बहुत खतरनाक है, जिंदगी को नरक बना देने के लिए काफ़ी है ये वर्ड साहब. हाउएवर द फॉलोइंग एसेट्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट. और से या कहें तो फॉलोइंग एसेट्स आर नॉट ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट. मैंने सर आगे तो पढ़िए क्या लिखा हुआ है. पहला एक्सक्लूजन लिखा हुआ है, रॉ मटेरियल, स्टॉक इन ट्रेड हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन. मैंने सर पहला वाला एक्सक्लूजन तो अप्लाई नहीं हो रहा है. दूसरा वाला एक्सक्लूजन क्या कहता है, दूसरे एक्सक्लूजन में लिखा हुआ है मूवेबल पर्सनल इफेक्ट्स ऑफ द एसएससी. मैंने कहा ऑफिसर सर सुनिए क्या लिखा है, मूवेबल पर्सनल इफेक्ट्स ऑफ द एसएससी. हर वो मूवेबल आइटम जो एसएससी के पर्सनल यूज की है कैपिटल एसेट नहीं मानी जाती है. सर मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था कि ये मिस्टर एक्स का पर्सनल कंप्यूटर है. पर्सनल कंप्यूटर समझते हैं ना, पर्सनल यूज का कंप्यूटर, वो उसने बेचा था. और पर्सनल यूज के जो मूवेबल आइटम्स होते हैं वो कैपिटल एसेट नहीं ट्रीट करे जाते हैं. और सर जब ये कैपिटल एसेट है ही नहीं तो काहे का कैपिटल गेन. फिर ये खोपड़ी पकड़े बैठा है. मिस्टर द्विवेदी एक मिनट रुक जाइए, देख लें दीजिए. मैंने कहा आराम से देखिए सर, आप कैसी बातें करते हैं बच्चों जैसी. ये छोटी छोटी बातें तो छोटे बच्चों को पता होती, आप लोग ऐसी ब्लंडर मिस्टेक कैसे कर सकते हो भाई. मूवेबल आइटम है, कंप्यूटर की बात हो रही है, पर्सनल यूज का आइटम है, भला ये कैसे कैपिटल एसेट मान लिया जाएगा. जब ये कैपिटल एसेट है ही नहीं सर, तो आपने इसके ऊपर कैपिटल गेन लायबिलिटी कहां से निकाल दी. एंड 45(1) साफ कहता है एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट. कैपिटल एसेट ये है नहीं. जब ये कैपिटल एसेट है नहीं सर, तो काहे का कैपिटल गेन. फिर असेसिंग ऑफिसर परेशान. मैंने सर अब की तो मैं पक्का मैं अपील में जाऊंगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा सर. और आपको मैं जरूर आपको मैं एक्सपोज करूंगा सर. अब मैं नहीं छोड़ने वाला दिस टाइम. नो दिस इज टू मच. हर बार आप लोग परेशान करते हो लोगों को, और आप समझते हो कि भोली भाली जनता है, उसको आप अपने हिसाब से जैसे चाहो वैसे नचाओ. सर नो दिस इज टू मच, ये नहीं चलेगा. नो दिस टाइम आई विल ब्रिंग दिस मैटर इन पब्लिक. मैं डिस्क्लोज करूंगा इस चीज को, सबको बताऊंगा कि आप जैसे लोग, आप जैसे ऑफिसर अननेसेसरली लोगों को कितना हैरेस कर रहे हैं. अरे सर मिस्टर द्विवेदी प्लीज कूल डाउन. मैंने कूल डाउन नहीं, आप क्यों ऐसे उल्टे सीधे काम करते हो भाई. इमीडिएट विथड्रॉ दिस नोटिस, अदरवाइज आप नहीं समझ पा रहे हैं मैं आपके साथ क्या नहीं कर दूंगा. मेरा दिमाग खराब है बिल्कुल. मिस्टर द्विवेदी ओके प्लीज आई एक्सेप्ट योर प्ली. मैंने कहा क्या एहसान कर रहे हो मेरे ऊपर, जो एक्ट में लिखा है उसके हिसाब से काम होना है ना. आई एम एक्सेप्टिंग योर प्ली. अरे जो कह रहा हूं वो बात सही कह रहा हूं ना. नो जस्ट इमीडिएट विथड्रॉ दिस नोटिस. असेसिंग ऑफिसर ने इस नोटिस को विथड्रॉ किया ना. मिस्टर एक्स भी नाचा घूम. मैंने कहा भैया नाचना बाद में, सेलिब्रेशन बाद में, पहले मेरी फीस दो. मेरे पास इतना टाइम नहीं है. अभी 4 ठुके और मेरे पास लगे हुए, उनको जरा समझना है जाके. साहब 8 लाख रुपए इसका बच गया,
ये भी, इसका भी टैक्स बचा, और साहब इससे मेरे को फीस कितनी मिली? 2 लाख रुपए। द मोरल ऑफ स्टोरी, इतना जो मैंने ड्रामा आपके सामने लगभग पिछले 1 घंटे से किया, इसका पर्पस सिर्फ इतना है कि सीए साहब, हम लोग इन डेप्थ पढ़ाई करते हैं, एक एक वर्ड को तौल तौल के पढ़ते हैं, उसके मतलब को समझते हैं, और जब हमारे पास प्रोविजंस की इन डेप्थ नॉलेज होती है तो इस तरह से जाके हम डिफरेंट ऑफिसर्स के सामने, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाके अपने क्लाइंट के केस को हम प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, और जो सही होता है उसके हिसाब से काम करते हैं। और जब तक प्रोविजंस की इन डेप्थ जानकारी नहीं होगी तब तक आप टैक्स प्लानिंग नहीं कर पाओगे। और अभी ये टैक्स प्लानिंग मत करना शुरू कर देना, हो सकता है कि एक जगह अगर बचते हैं तो दूसरी जगह फंस जाएंगे जाके। इज दिस क्लियर? चलिए, तो दिस इज जस्ट फॉर योर एक नॉलेज के लिए मैंने आपके सामने एक ये सीन क्रिएट किया। तो इस प्रकार से ये एक्सप्लेनेशंस भरे पड़े हैं साहब सेक्शन 43(1) के अंदर, जो हम लोगों की प्लानिंग की वजह से ही यहाँ पे इंट्रोड्यूस करे गए हैं। इज दिस क्लियर?